Now let's do some questions without the golden palette. अभी तक प्रैक्टिस हो गई है, so let's start. Okay, journalize the following transaction in the books of Mr. Ganpati. So you'll write about books of Mr. Ganpati. Balances on 1st April 2016. See, our financial year accounting year is from 1st April to 31st March every year. So just ये साल ओपन हुआ है 16-17 और उसके डिटेल्स हमको दिए गए हैं. So these are nothing but your opening balances. So देना बैंक 2 lakh means what? This is your bank account का balance. Machinery 50,000. Computers and printers 40,000. Sundry debtors 60,000. All 4 are your assets. Sundry creditors 50,000 is your liability. So 4 items debit में, एक item credit में. Balancing figure, what will be the balancing figure? Of course it will be your capital. So let's start with the entry directly. Point number 1. देना बैंक 2 lakhs. So देना बैंक account debit, or you can write balance with bank account debit. देना बैंक balance account debit 2 lakhs. Okay, machinery again your asset, so I'll debit it. Machinery account debit. सब एसेट्स को डेबिट बैलेंस, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000. कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स अगेन माय एसेट, सो कंप्यूटर एंड प्रिंटर अकाउंट डेबिट बाय 40,000. एंड सन्ड्री डेटर्स जिनको मैंने कुछ बेचा है और मुझे उनसे कैश रिसीव करना है. सो माई एसेट आई हैव टू रिसीव कैश और बैंक बैलेंस में चेक फ्रॉम देम. सो मैंने कुछ बेचा है, मुझे उनसे रिसीव करना है, दैट इज माई एसेट. सो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 60,000. एंड नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट में जाएगा, सो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. हाउ मच सन्ड्री क्रेडिटर्स? 50,000. अब डेबिट साइड इज हेवियर, क्रेडिट साइड इज लेस. सो क्या चीज मिसिंग है इसके अंदर? क्या चीज हमको लास्ट ईयर से अभी लेकर आना है? The balancing figure will be your capital. Okay, so to capital account balancing figure. Your balancing figure, write balancing figure in bracket. Okay, so the total of your debit side minus the the amount of your credit side comes up to 3 lakh. So what will be your narration now? The narration will be being balances brought forward. That is last year का balances अभी लेकर आया है 1st April 16 में. So being balances brought forward. Okay, this is with your entry number 1. Now entry number 2. Check received from Radha. Okay, you have received a check from Radha and immediately deposited in Dena Bank account. जैसे ही चेक आया देना बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया. So what will be the entry? What is actually increasing? देना बैंक का बैंक बैलेंस उसी दिन इंक्रीज हो गया. जैसे ही चेक मिला मैंने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया. So your entry will be देना बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, चेक में बैंक में डाल चुकी हूं ऑलरेडी. सो देना बैंक अकाउंट डेबिट.
चेक कितने का है? 20,000. सो 20,000. देना बैंक अकाउंट डेबिट 20,000. एंड किसने चेक दिया? चेक रिसीव फ्रॉम राधा. सो राधा इज द गिवर ऑफ द चेक. क्रेडिट राधा's अकाउंट. देना बैंक अकाउंट डेबिट टू राधा's अकाउंट. $20,000. And check received deposited in bank is your narration. Check received deposited in bank. Okay, so we have finished with our entry number 2. Let's move on to the entry number 3. Check received from Shankar on 4th April 10,000. Now tell me one thing, उस चेक का कुछ किया है? Let's simultaneously read the 4th entry. Check received from Shankar of rupees 10,000 deposited in bank on April 7th. यानी 4th अप्रैल को मुझे मिला था, 7th अप्रैल तक मैंने उसको मेरे पास ही रखा एंड इन ड्यूरिंग 7th अप्रैल मैंने जाके उसको बैंक में डाला है. सो आइदर यू कैन डू वन थिंग इज यू डोंट पास एनी एंट्री ऑन 3rd वेदर चेक इज रिसीव्ड, बट बैंक में नहीं गया तो न तो मेरा बैलेंस बढ़ा बैंक का, आई एम नॉट पासिंग एनी एंट्री. एंड डायरेक्टली ऑन योर 7th अप्रैल what you will do, बैंक का बैलेंस बढ़ा, सो बैंक अकाउंट डेबिट. किसने चेक दिया? शंकर ने टू शंकर. बैंक अकाउंट डेबिट टू शंकर. नाउ दिस इज वन ट्रीटमेंट. नाउ द अदर ट्रीटमेंट इज व्हाट आई कैन डू इज, मेरे पास चेक आ गया तो आई एम अज्यूमिंग कि मेरा कैश बढ़ गया, ऑल्दो फिजिकली कैश बढ़ा नहीं है चेक आने से, बट I am treating the check as equivalent to my cash worth. So I am increasing the cash balance and crediting Shankar because I have received check from Shankar. So I'll do the entry for the second method now because earlier हमने ऐसे entries बहुत किए हैं जिसमें first method लिया था. So let's go for the second method now. चेक रिसीव फ्रॉम शंकर ऑन April 4th 10,000. बैंक में नहीं डाला है, आई एम अज्यूमिंग दैट कैश आया है, ऑल्दो फिजिकल कैश इज नॉट देयर, बट चेक रिसीव्ड इज कैश वर्थ. सो कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच? 10,000 टू शंकर. 10,000. And this is the entry of check received from Shankar. Okay, now the 4th entry. अब जो चेक मुझे मिला था वो मैं 7th को जाके बैंक में डिपॉजिट कर रही हूं. सो द 3rd एंट्री इज ऑन 4th अप्रैल एंड द 4th एंट्री इज ऑन 7th अप्रैल. ओके, नाउ व्हाट इज इंक्रीजिंग? बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग बिकॉज चेक अब गया बैंक में. एसेट बैंक इंक्रीजिंग, सो बैंक अकाउंट डेबिट. कितने का चेक था? 10,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000. एंड अब क्या करोगे? कैश एक्चुअल में इंक्रीज हुआ था क्या? नहीं, बट यहां किया था कैश अकाउंट डेबिट. सो अल्टीमेटली ये इफेक्ट हटाना है, सो कैश अकाउंट विल बी अगेन क्रेडिटेड. सो टू कैश अकाउंट 10,000. See, and the narration will be check received from Shankar now deposited into bank. Now deposited into bank. See, nullify करो. यदि कैश डेबिट है और कैश क्रेडिट है,
सो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो रही है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट शंकर हो रहा है. कैश कैश को कैंसिल करो, एक डेबिट में पड़ा है एक क्रेडिट में पड़ा है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट, दैट इज व्हाट. यदि मैं 7th को भी एंट्री करती तो वो ही करती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट. ओके, सो वी आर डन विद आवर 3rd and 4th entries. Now 5th entry, outstanding wages 500. First tell me what is the meaning of outstanding wages. Now all of us know wages, it is outstanding. So salaries 500. So salaries is my expense. सबको पता है कि salaries expense होता है. Outstanding salaries क्या होता है, salaries that were pertaining to the current year. Okay, इसी साल की salaries थी पर मैं नहीं दे पाई during the current year, so मैं next year में दूंगी. So now it is my liability that these were pertaining to current year but I could not pay during the year. So entry क्या होगी, liability. यदि मैं कुछ generate कर रही हूँ outstanding salary, liabilities का हमेशा credit balance होता है. So outstanding salaries को आप credit करोगे and salary expense तो है ही, salary इसी साल का expense है, pay नहीं किया तो क्या. So I will debit my salaries account although I have not paid during the year, but this expense should be accounted for in the year कि salaries इसी साल की थी. So salaries account debit. Expenses are always debited. Salaries account debit. How much? 500. And simultaneously I am generating a liability to pay these salaries. I have not paid, it is a liability. So outstanding salaries is my liability और liability को करोगे credit. So salaries account debit 500 to outstanding salaries. मेरी liability 500, I will have to pay it in the next year and your narration will be salaries due but not paid, that is outstanding. Salaries due but not paid. Okay, moving on to the 6th point. Check deposited on April 7th dishonored. Okay, यदि चेक डिपॉजिट हुआ था April 7th को तो मेरी नलिफाइंग एंट्री, यदि मैं सोचूं तो मेरी एंट्री क्या थी. सी आई विल राइट इट हियर इन द रफ. बैंक मेरा बड़ा था, राइट. सो बैंक अकाउंट डेबिट. जब चेक मिला था तब मैंने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट. एंड वो चेक कितने का था, 10,000 का था. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000. एंड हु हैड गिवन मी दिस चेक, Shankar had given me. So bank account debit to Shankar. Credit the giver 10,000. Okay. अब check deposited on April 7th dishonored. वो चेक डिसऑनर हो चुका है, मीन्स मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा. तो जब चेक मिला था उसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शंकर. डिसऑनर में जस्ट रिवर्स एंट्री पास करनी है, दैट्स ऑल. शंकर अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट में है शंकर उसको करो डेबिट. शंकर अकाउंट डेबिट एंड बैंक डेबिट में पड़ा है उसको करेंगे क्रेडिट. शंकर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000 in narration. Check received from Shankar and deposited in bank dishonored. So you can write the full. I am writing check dishonored. Okay, so this is your 6th point. Moving to the 7th point now. 7वां point. Check received from Ram and same is endorsed to Shyam on 15th April 5,000 का चेक. So 15th April की ये एंट्री है. What do you mean by endorsed?
एंडोस्ड मीन्स आपने जो मिला था उसको किसी और को दे दिया। एंडोस्ड, आपका कोई लायबिलिटी होगा उसको देने के लिए, तो आपने जहां चेक मिला था राम से वो ही श्याम को पास ऑन कर दिया। ओके, सो व्हाट विल बी द एंट्री? हु इज द रिसीवर ऑफ द चेक? अल्टीमेटली श्याम इज रिसीवर ऑफ द चेक। श्याम को दे दिया, राम से मिला हुआ चेक श्याम को दे दिया, सो श्याम इज द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, श्याम अकाउंट डेबिट। How much? 5,000. And who gave you the check? Ram. So Ram's account credit. Shyam account debit 5,000 to Ram. बैंक कहीं नहीं आएगा पिक्चर में, because you have not deposited the check any time during the year in the bank. This check came to you and you directly gave it to Shyam. So receiver को करो debit और गिवर को करो क्रेडिट। श्याम अकाउंट डेबिट टू राम, एंड इन ब्रैकेट्स यू कैन राइट द नरेशन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंडोस्ड टू श्याम। ओके, राइट द नरेशन। नाउ पॉइंट नंबर 8, check received from Ram and endorsed to Shyam is dishonored. Okay, ये चेक भी डिसऑनर हो गया। मीन सिंपली जब रिसीव के टाइम क्या एंट्री कर रहे हो उससे जस्ट अपोजिट एंट्री आपको डिसऑनर के टाइम करनी है। यदि बैंक होता पिक्चर में तो बैंक का, यदि बैंक अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, एंड हियर इन 7th एंट्री आई हैव द एंट्री इज श्याम अकाउंट डेबिट टू राम ऑन when I received the check and I endorsed it, but now the check is dishonored, so just reverse entry pass करो। राम अकाउंट क्रेडिट में पड़ा है, सो राम अकाउंट डेबिट 5,000 एंड किसको क्रेडिट करोगे? श्याम अकाउंट डेबिट में पड़ा है तो उसको क्रेडिट कर दो। राम अकाउंट डेबिट 5,000 टू श्याम अकाउंट 5,000. Now write in narration, check received from Ram and endorsed to Shyam is dishonored rupees 5,000. Okay. Finishing with your 8th entry, directly come up to 9th entry. Bank charges charged by bank 160. First tell me नेचर ऑफ बैंक चार्जेस क्या है? आपका एसेट है, लायबिलिटी है, आपका एक्सपेंस है या आपका इनकम है? बैंक चार्जेस, बैंक मुझे चार्ज करता है, दे आर माई एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और पैसा कहां से निकला है? बैंक से निकला है या कैश? नाउ टेल मी वन थिंग, विल बैंक कम टू योर हाउस कि बैंक चार्जेस है 160 कैश दे दो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। दे विल डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट the amount from your bank balance. Okay, so first effect, bank charges, वो मेरा expense है, debit the expense, so bank charges account debit. How much? 160. And bank will directly reduce your bank balance. कैश लेने थोड़ी ना आएगा घर पे, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 160, बैंक बैलेंस रिड्यूस कर रहा है 160 से, सो टू बैंक हाउ मच? 160. एंड इन नरेशन व्हाट विल यू राइट? बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 160. Okay, that is all for this question. Let's practice more.